أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سلام. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج 18 جیٹھ 31 مئی جو مجلس سے امام حسین علیہ السلام بیاد عاشوراء حسینی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، قبل اس کے کہ میں بعنوان عظمت عزاداری نمبر 9 سے خطاب کروں، دعا گو ہوں اللہ کریم اس مجلس کے بانیان حاجی محمد نذیر چٹھا، حاجی محمد رضا گجر، پروفیسر راجہ حسن رضا، مولانا مختار حسین ثقفی اور ان کی فیملیز کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. جو مومنین مومنات دور نزدیک سے ماشاءاللہ ویک ڈے ہوتے ہوئے کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے اور اس حاضری کو آپ سے قبول و منظور فرمائے. اس مجلس کے نارتھ امریکہ میں پہلے بانی بابا سید بلال حسین شاہ صاحب زیدی تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے اور ان کا جو حسینی قلندری ماتمی دستہ ہے اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پڑھنے سننے والوں کو آج کی مجلس میں جو تشریف لائے ہیں اللہ اجر و جزا عنایت فرمائے، نیاز تیار کرنے والوں کو اجر و جزا دے، جنہوں نے ایک دوسرے کو میسیجز کیے ہیں ماشاءاللہ کافی بہت لوگ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے، اجر دے. مادر حسین سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بروز قیامت بہرمند فرمائے اور دنیا میں زائر حسین علیہ السلام بنائے. زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ شرف قبولیت پائے اور ان مجالس کے صدقے میں جب امام تشریف لائیں، اگر ہم زندہ ہوں تو فوراً حاضر ہوں، مر چکے ہوں تو قبروں سے اٹھائے جائیں اور امام کی معیت میں شہدائے کربلا کا انتقام لینے والوں میں شمار. 8 مجالس اسی مقام پر تقریباً 8 سے 9 مہینوں میں پڑھ چکا ہوں. 8 مجالس اور ہر مجلس کا عنوان تھا عظمت عزاداری. آج ہے عظمت عزاداری نمبر 9. آج میں نے سورہ حج کی 3 آیتیں پہلے پڑھنی ہیں، اس کے بعد پھر ایک آیت 2-4 آیتیں سمجھ لیں، میکسیمم 10 آیتیں آئیں گی، 2 سے 4 احادیث آئیں گی، 2 سے 4 استدلال آئیں گے جتنا وقت ہے. مگر آج کی تقریر تقریباً میری عمر بھر کی تقاریر میں سے منفرد ہوگی.
آئیے خطاب شروع کرتے ہیں. ارشاد ہوا اوزنا للذین یقاتلون، اجازت دی گئی، اذن دیا گیا انہیں جن کے ساتھ لڑائی کی گئی، جن پر جنگ مسلط کی گئی، ان کو اجازت دی گئی. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے. تو مظلوم کو جہاد و قتال کی اجازت من اللہ ہے. اب کوئی مجاہد بتائیں جس نے میدان میں کھڑے ہو کر کہا ہو یا بنی الکرام، اے شریف زادو، ان اللہ آذن لی، آذن قتلی و قتلکم، اللہ نے مجھ حسین کو اجازت دی ہے کہ میں بھی قتل ہو جاؤں، تمہاری شہادت کی بھی اجازت دی ہے. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جب کربلا اپروول کے بغیر نہیں ہوتی، کربلا والوں کے ذکر میں بغیر اپروول کے کوئی کیسے آ جائے گا؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. سوال پیدا ہوا، جن پر جنگ مسلط کی گئی وہ تو تھوڑے ہیں، جو مسلط کرنے والے ہیں وہ بہت ہیں. ان کے پاس ویپنز تھوڑے، ان کے پاس گھوڑے تھوڑے، ان کے پاس غذا تھوڑی، ان کے پاس افراد تھوڑے، ان کے پاس ریسورسز تھوڑے. تو یہ اتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے آواز دی، ہم نے ان سے تھوڑی کہا ہے، اللہ ان کی نصرت پر قدیر ہے. جب جنگ اللہ کے لیے ہے تو نصرت بھی ادھر سے آئے گی. جو جنگ اللہ کے لیے تھی نصرت ادھر سے آئی ہے، خواہ فاتح بدر والی جنگ ہو یا فاتح کربلا والی جنگ ہو. یہ کون لوگ ہیں جن پہ جنگ مسلط ہوئی، جن کی نصرت پہ اللہ قدیر ہے، جو مظلوم ہیں، جنہوں نے دفاعی جنگ لڑی ہے؟ یہ ہیں کون؟ الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل کیا گیا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا. یہ ہجرت پہ مجبور تھے، جہاد میں آپشن رکھتے تھے. انہیں اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو جو نکالا گیا ان کے گھروں سے، تو ان کو نکالا جانا جائز نہ تھا، یہ ناجائز کام تھا ان کو گھروں سے نکال دینا، کیونکہ یہ مظلوم تھے، یہ کسی سے لڑتے نہیں تھے، یہ اللہ کی نصرت والے تھے، یہ اللہ کے امر پہ چلنے والے تھے. ان کو نکال دیا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ بِأَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. ان کا جرم صرف یہ تھا، یہ کہتے تھے امیہ والے ہمارے رب نہیں، ہمارا رب اللہ ہے. فرعون رب نہیں. یہ کیس بنی ہاشم کا نہیں تھا، اللہ کی ربوبیت کا تھا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر کسی دور میں کوئی حق کا نمائندہ باطل کے نمائندے کے سامنے سر تسلیم بیعت خم کر لیتا تو نقصان کس کا ہوتا؟ نہ آسمان رہتے نہ زمین رہتی. آج اگر گلیکسیز میں حیات چل رہی ہے تو صدقہ ہے ان مظلوموں کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْلَا
दफ़उल्लाहि अन्नास बअज़हुम बिबअज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बेयउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर ये मजलूम ना होते तो कायनात में न कोई कलीसा होता, न कोई कनीसा होता, न कोई मुसलमानों की मस्जिद होती, न कोई गैर मुस्लिमों का इबादत खाना होता, जिनमें अल्लाह का जिक्र कसरत से होता है। जिक्र बचाने वाले ये मजलूम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीते रहे सैयद साहब, सलामत रहें, आबाद रहें। और इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़। सवाल पैदा हुआ, अल्लाह ये सब काम कर लेगा? ताक़ीक़ अल्लाह कवी है, अजीज है। ये जो बंदे काम कर पा रहे हैं क्योंकि अल्लाह कवी है, अल्लाह की कुव्वत से ये इतना बड़ा मार्का इन्होंने सर कर लिया, अल्लाह की कुव्वत से इतनों का मुकाबला कर लिया। वो कवी भी है, वो गालिब भी है। बारेला कुछ वजाहत फरमा दे कि ये लोग हैं कौन? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये कौन मजलूम है? इन मजलूमों को जब बस चलेगा, जब इन्हें ताकत मिलेगी, कुदरत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, तसल्लुत मिलेगा, जब इनके बस में होगा तो ये चार काम करेंगे। नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अम्र बिल मारूफ करेंगे, नही अनिल मुनकर करेंगे। आप ज़ियारत वारिस में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाता व आतैतस ज़काता व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। आली आली हाजी। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अजीब है ये। अब ये बात आज समझ में आ गई कि हम जो ये आज़ादारी कर रहे हैं ये उनके लिए है कि जिनको वतन छुड़ाया गया, ये उनके लिए है जिन पर जंग मुसल्लत की गई, ये उनके लिए है जो मजलूम थे, ये उनके लिए है जिनको अल्लाह की नुसरत व कुदरत मिलती रही, ये उनके लिए है कि जिन्होंने माबद बचाए, इबादत खाने बचाए, कलीसा हो या कनीसा हो, जितने भी इबादत खाने हैं जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है, इनमें कभी अल्लाह का जिक्र ना होता अगर ये कुर्बानी न देते। इन्होंने अल्लाह का जिक्र कराया है। अब समझ में आई बात, क्योंकि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला होता है एहसान से। तवज्जो रहे, अल्लाह कैसे एहसान का बदला नहीं देगा? जो अल्लाह के भी मोहसिन हो उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं। जो अल्लाह पे भी एहसान करे उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चर्चा किया अल्लाह का हर कलीसा में,
ہر کنیسہ میں، بیعہ میں، صلوات میں، مساجد میں، انہوں نے ہر جگہ اللہ کو منوایا، اب ہر جگہ اللہ ان کو منوا رہا ہے. یعنی اچھا، اب یہ جو مجلس ہے، یہ کیسے ہمیں یقین ہو کہ یہ مجلس وہی ہے جو ریکوائرڈ ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ تو سیاست بازیوں میں آتے ہیں نا، تو پتا کیسے چلے کہ یہ مجلس عبادت ہے، یہ مجلس تربیت گاہ ہے، یہ مجلس رد احسان ہے، یہ مجلس اپنے خون کی پاکیزگی کا اعلان ہے. یہ مجلس میگنیٹزم کے لیے ہے، کیونکہ ہم بنے ہیں علی کی ولایت کے نور سے. تو جہاں علی کے بچوں کا ذکر ہوگا ہم اٹریکٹ ہو کے آئیں گے. جیسے لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، ویسے ذکر محمد و آل محمد علی والوں کو کھینچتا. آپ جب بچے تھے مجھے ایمان سے بتائیے، کبھی آپ نے سوچا تھا مجلس کس کی ہے؟ نوحہ کون پڑھ رہا ہے؟ ذاکر کون ہے؟ بانی کون ہے؟ یہ سیاستیں کب سے آ گئیں؟ جب سے آپ نے عزاداری کو انٹرپرائز بنایا، آپ سے اللہ نے روحانیت کھینچ لی. واپس آئیے، عزاداری کو عبادت سمجھیے، انٹرپرائز نہ سمجھیے. جہاں ذکر ہو میرے مولا کا وہاں پہنچیے، خواہ آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا دشمن ہو، اس سے اختلاف ہو یا اس سے اتفاق ہو، وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اپنائیت علی سے رکھیے، غیریت حسین سے رکھیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی، سلامت رہیں. ذرا قرآن کی آیتیں سنیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ لَهُ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کے لیے ہجرت کرے، اللہ کے لیے نکل جائے، اسے راستے میں اللہ نعمتیں ہی نعمتیں دے گا. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور اس کے لیے وسعت ہی وسعت ہوگی، وسعت ہی وسعت ہوگی. جو اللہ کے لیے نکل جائے اس کے لیے وسعت ہی وسعت ہے. ایک وسعت جو میں سمجھا ہوں، امام صادق آل محمد سلام اللہ علیہ نے کہا، فرماتے ہیں کہ ہمارے سب کے دروازے ہیں، مگر میرے جد حسین کا دروازہ 13 سے وسیع ہے. وسعت ملی کہ نہ ملی؟ ہم سب کے سفینے ہیں، مگر میرے جد حسین کا سفینہ ہم 13 سے بڑا بھی ہے، تیز بھی ہے. مراغمن کثیرن وسعتن ومن یخرج من بیتہ. اب آ گئی بات، کیسے پتا چلے یہ مجلس وہی ہے جو ریکوائرڈ ہے؟ تو قرآن سے سنیں. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے، کوئی سمجھے یا نہیں؟ ماتو او قتلو، خود مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، جن کو راستے میں موت آ جائے ان کا اجر اللہ پہ ہوتا ہے. کوئی ذکر بتائیں کہ ذاکر نے جملہ کہا ہو اور کسی کا گریہ نکلا ہو اور آؤ بکا پہ ذاکر کہے اجرکم علی اللہ. یہ ہے مجلس، یہ ہے جینوئن مجلس. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نذر امام کرتے ہیں، اور ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سلوات. اب یہ جو ہم جو ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں،
हमारा काम है करते रहना, दुश्मनों का काम है तनकीदें करते रहना। हर रोज एक नई तनकीद है, हर रोज एक नया अंदाज है। मैं आपसे सवाल करता हूं, कुरान ने जो कहा वफदैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, ज़िब्ह बेमाना मज़बूह है, ज़िब्ह बेमाना ज़बीह और मज़बूह, जो ज़बा हो गया हो उसको कहते हैं ज़बी। इस्माइल का लक़ब है ज़बीहुल्लाह, वो कब ज़बा हुए? हुजूर कहते हैं अनब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। वो ऊंट वाली बात, ऊंट आ गए थे हजरत अब्दुल्ला की जगह, हजरत अब्दुल्ला बच गए, वहां दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए, मैं इस्माइल का बेटा हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, दोनों ज़बी हैं। ना इस्माइल ज़बा हुए ना अब्दुल्ला ज़बा हुए, तो फिर कैसे ज़बीहुल्लाह हुए? तो पता चला कुर्बानी में नीयत देखी जाती है, थ्योरी देखी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं देखा जाता। हम जो ये मातम करते हैं ये कहते हैं बे अबी अंतुम व उम्मी तिबतुम व ताबतिल अर्जुल्लती फीहा दुफिनतुम व फुज़तुम फौजन अजीमा या लैतना कुन्ना माकुम फनफूजा फौजन अजीमा। हम ये कहते हैं हमारे माँ बाप कुर्बान, मेरा बाप तो तभी मौत मर गया, तो क्या ये जुमला गलत होगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान? तवज्जो रहे, पता चला ईसार में, कुर्बानी में इन्नमल आमालो बिन्नियात, नीयत देखी जाती है। इब्राहीम और इस्माइल की नीयत देखी गई, इसलिए मिना बन गई। तवज्जो तवज्जो, हुसैन का अमल देखा गया तो करबला बन गई। हम शियाने अली ये जो मातम कर रहे हैं, शब्बेदारियां कर रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, नोए पढ़ रहे हैं, ये शबीह मिना है। जब जमाने का इमाम आएगा हम इंतकाम लेंगे, वो शबीह करबला होगी। ठीक है जनाब? राजा साहब, शाह जी, राजा साहब, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। कुछ समझ में आ गई बात ना? ये तमन्ना है, ये हसरत है जो हम पूरी कर रहे हैं। करबला हसरतों ही का मरकज है। इसमें यह न पूछना कि इसका स्टेटस क्या है, हसरत का कोई स्टेटस नहीं होता। हसरत है, तमन्ना है, काश हम होते, इसलिए हम रोते हैं। हमने उन्हें खो दिया इसलिए रोते हैं। हम वहां होते तो कुर्बान होते। मैं इशारा करूंगा, ये आर्मी पर इतना खर्च होता है और आर्मी वाले डेली 4-4, 5-5 घंटे ये वर्जिशें करते हैं। जंग तो नहीं होती, जंग तो पता ही लगे कि न लगे, ये वर्जिश है मातम हुसैन, इंतकाम खून हुसैन लेने की। क्यों भाई राशिद हैं? ये आर्मी का बजट, हर मुल्क का आर्मी का बजट मुल्क के बजट से ज्यादा क्यों होता है? इसलिए कि सारी एजेंसियां मुल्क नहीं बचा सकती, अकेली आर्मी बचा लेती है। अब समझ में आई बात, हुसैन का बजट ज्यादा क्यों है? सारे मुसलमान इस्लाम नहीं बचाएंगे, हुसैन के आजादार बचाएंगे। हुसैन के आजादार बचाएंगे। लिहाजा ये ना कहना कि इतने ज्यादा क्यों खर्च हो रहे हैं नियाज़े हुसैन पे, हम पहले से और ज्यादा करेंगे।
ये न कहना मातम इतना क्यों है, हम और करेंगे, इसलिए कि हमें हमारा इमाम बता के गया है। अभी दिन गुजरे हैं, इमाम ने नहीं बताया कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्जिन करबला। अब 18 जेठ पे एतराज न करना, जब 365 दिन ही आशूरा है तो 18 को मना ले तो क्या हर्ज है। याली याली जान निकल रही है 18 जेठ पर। इनकी नीयतें खराब है, ये नीयतों के खराब है। जी हाँ, ये नीयतें ठीक नहीं रखते, वरना 18 जेठ, मैं कह रहा हूं 365 दिन इमाम की आजादारी हो सकती है, 365 दिन हो सकती है। तो अगर हम इस एतबार से कर लें कि ऐसा ही दिन था, याद रखिए आज हम ये नहीं कह रहे आज आशूर है, तवज्जो रहे, जैसे हम ये नहीं कह रहे कि ये ताजिया वो हुसैन का ताजिया है, ये ताजिए की शबी है, ये ताबूत शबी है, ताबूत है, ये इमाम बारगाह शबी है, करबला है, जैसे ये शबी है 18 जेठ शबी है आशूरा है। ये शबी आशूरा है। फिर भी थो ना, बिस्मिल्लाह। मेरे महबूब सदा होती रहे मेरी अदा, और ख्वाजा इस्लाम को हर दौर में गाजी देगी, ख्वाजा इस्लाम को हर दौर में गाजी देगी। मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी, मेरी मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी। नारे सलवात। देखिए ये जो तवाफ़े काबा है, तवाफ़े काबा ये है किसके लिए? हज के लिए, ऐसे ही है ना, हज के लिए। अब जो उम्रा आप करते हैं तो भी तवाफ करते हैं, उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, वैसे गुजर रहे हैं तो कहते एक तवाफ सुबह कर लूं, एक शाम कर लूं। क्यों? जब बंदा बैत के करीब होता है तो उसका दिल चाहता है सुबह शाम ही तवाफ लगाए। अब समझ में आई बात, हम अहले बैत के करीब है, सुबह शाम मातम करना चाह रहे हैं। अब बताओ न्यूयॉर्क वालों, शाह जी जी हाँ, बेशक बेशक, बिल्कुल देखा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेशक बेशक, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। हाजी साहब सलामत रहें। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ रही है। ये एतराज बाजी करें मगर जरा संभल के करें। अगर आप में इतनी औकात है कि जवाब दे सके तो फिर एतराज करें। जो टके टके का इंसान है, जिसको घर से बेगम साहिबा रोटी नहीं देती, वो इमाम हुसैन की अज़ादारी पे आके तब आजमाई करता। खुदारा अल्लाह से डरे, मजलिस हुसैन के बारे में हरकतें ना करें। ये देख लें, याद रख लें, ये मेरी बात याद रख लें, लोहे दिल पे लिख लें ये बात। जिस तरह मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत के बारे में लेकुल्ल कदमिन लेकुल्ल खुतवतिन हज्जुन, हर आधे कदम पर हज है। कोई समझे हैं आप? हर आधे कदम पे हज है, आधे कदम पर हज है। हज का सवाब है 60,000
खुतबा बनते हैं, अगर आप गुस्ल करके आए और फुरात से और इमाम हुसैन की जरी पे आए, तो जिस इमाम की जरी पर फुरात से जरी पर जाते हुए 60,000 हज का सवाब मिलता हो, उसके मातम के बारे में आप सोच रहे हैं कि कब हो कब ना हो। और कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन है आशूरा, ये है जमान। व कुल्लु अर्जिन करबला, हर जमीन है करबला। हर दिन मातम हो सकता है, हर जमीन में मातम हो सकता है। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा हर जमीन करबला कैसे बनेगी। मैंने आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख जाफर शोस्त्री की किताब में असामिन ले मजलिस इमाम हुसैन पढ़े। जब मैंने वो पढ़े तो अजीब मेरी आंखें खुल गई। अन्नहु मुसल्लल्लाह, अन्नहु मशहदुल मलाइकतिल मुकर्रबीन, अन्नहु मौज़िउन लिद्दुआ, मौज़िउद्दुआ लिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल फातिमा वल हसन, इन्नहु मंजरुल हुसैन, इन्नहु महल्लु खिताबिही बेअहलिल मजलिस व तकल्लुमिही बेहिम, अन्नहु इन्नहु महबूब सादिक, इन्नहु अरफा, इन्नहु अरफा, इन्नहु मुज़दलिफा, इन्नहु हतीमुन, इन्नहु मताफुल बैत, इन्नहु कुब्बतुल हुसैन, इन्नहु ताली तिलवुल मजालिस मिनल अव्वल इलल आखिर, इन्नहु मंबाउन लिमाइल जन्नह। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई कि जहां हुसैन की मजलिस होती है वो जमीन बन जाती है अरफा, वो जमीन बन जाती है मुज़दलिफा, वो जमीन बन जाती है हतीम इस्माइल, वो जमीन बन जाती है निगाह हुसैन का मरकज, वो जमीन बन जाती है हुजूर अली और फातिमा और हसन की दुआ की जगह। वहां पर मलाइका मुकर्रबीन आकर हाजिरी देते हैं, वो जगह महबूब सादिक बन जाती है। वहां पर अल्लाह के फरिश्ते कौसर लेके खड़े हो जाते हैं। जहां मजलिस होती है हुसैन की वहां कौसर लेके खड़े होते हैं, वहां पर जन्नत के खाने आते हैं। और जो अल्लाह ने पहली मजलिस पढ़ी थी और साहिबुज़्ज़मान आखिरी पढ़ेंगे, सबके सवाब में ये आजादार शरीक हो जाता है जो एक मजलिस में आया है। मैंने जब ये पढ़ा आंखें खुल गई। ये मताफुल बैत हो गया। ये जो मजलिस जहां आप बैठे हैं ये मताफे काबा हो गया। यूं समझे आप तवाफ कर रहे हैं, आप काबा के अराउंड तवाफ कर रहे हैं। आप नारे नहीं लगा रहे, लब्बैक कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जब मैंने ये पढ़ा इन्नहु कुब्बतुल हुसैन, हुसैन की मजलिस बन जाती है रोज़ा हुसैन। अब समझ में आ गई बात। कुल्लु अर्जिन करबला, हर जगह मजलिस होनी चाहिए, हर जगह कब्र हुसैन बन जाए, मकबरा हुसैन। अब समझ में आ गई बात। अब न कहना फलां दिन क्यों मजलिस है, न कहना फलां जगह क्यों मजलिस है। हमने हर जगह मजलिस करनी है, हर रोज मजलिस करनी है, हर रोज आशूरा बनाना है, हर जगह को करबला बनाना। बस तकरीर यहां पर तमाम हो गई। इंशाअल्लाह जिंदगी है तो फिर एक मजलिस और रह गई 10वीं। आज मैं यहां बहस को रोक रहा, इसलिए हमारे मराजिअ अज़ादारों की जूतियां सर पे रखते थे। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार थे आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख मोहम्मद फाजिल कफकाजी वाहिदी लंकारानी। मैं वहां हाजिर खिदमत हुआ, बीमार थे, चलने से माजूर हो गए थे, उरेड़ी पे चलते थे, तख्त पे लेटे हुए थे। तो मैं गया और
मेरे साथ वो रेडी साथ चल पड़ी। मैंने कहा शायद मुझे खुदा हाफिजी करने लगे होंगे। देखा कि अपने बेटे से कहा, आगा जवाद इस वक्त वो खुद मरजा तकलीद है, माशाअल्लाह उनकी तकलीद हो रही है, आयतुल्लाह जवाद की तकलीद हो रही है, जो हमारे क्लास फेलो थे, हमसे जूनियर थे बल्कि। आगा ने जवाद से कहा कि आगा जवाद ज़रा आगा सखावत को पीछे ले जाओ। मेरा जूता उठाया और आंखों पे लगाया और मुझसे कहने लगे ये जाकिर का जूता है और ज़ाहिर हुसैन का जूता। ये नायब इमाम से पूछें कि मजलिस हुसैन क्या है। इमाम सादिक उस जगह बैठते थे मजलिस में जहां हुसैन इब्न अली की मजलिस में आने वालों ने अपनी जूतियां रखी होती थी। देखिए आप पाक जगह बैठते हैं ना, पाक जगह, इमाम कैसे ऐसी जगह बैठेंगे, यानी अज़ादार का जूता कितना पाक हो जाता है मजलिस हुसैन में आने के। ये आपके जो आंसू हैं अल्लाह शिफा भी दे, जो मरीज हैं बानियान में, जो इनके घरों में जो मरीज हैं उनको भी अल्लाह शिफा दे, बे औलादों को औलाद दे, जो इनके इमिग्रेशन है उनको इमिग्रेशन दे, जिनकी मुश्किलात है उनकी मुश्किलात हल करे, जो हवाइज रख के बैठे हैं सबकी हाजात पूरी हो। किसी का नाम नहीं लूंगा आज, वो माँ नाम लेगी जिसको पुरसा देने हम आए हुए हैं। जाहिर है ये मजलिस है आशूर की शबी। मालूम है आशूर का दिन क्या दिन था? आशूर का दिन क्या दिन था? आशूर के दिन में जुल्म हार गया, सब्र ने शिकस्त तस्लीम नहीं की। इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। मीडिया वाले भी तशरीफ फरमाए, इससे बड़ा जुल्म कायनात में नहीं हो सकता, इससे बड़ा सब्र भी नहीं हो सकता। न इतना बड़ा जुल्म है, न इतना बड़ा सब्र है। जितने इम्तिहान सारे नबियों पे आए वो अकेले हुसैन पे। मैंने किबला आयतुल्लाह हुसैन बख्श से पूछा था सन 1990 में करबला गाह में शाह में। मैं इधर आ रहा था तो मैंने कहा किबला ये बताएं कि आया फातिमा सुगरा का वजूद है या नहीं? तो ढाई मार के रोने लगे और कहने लगे पहले मैं ये समझता था कि शायद रिवायत ज़ईफ है। बाद में मेरे ज़हन में एक बात आई बिहार की रिवायत के बारे में, क्योंकि हुसैन से हर वो इम्तिहान लिया गया जो नबियों से लिया गया था, तो याकूब और यूसुफ के फिराक का इम्तिहान कैसे होगा अगर सुगरा ना हो? कुछ समझे आप? माशाल्लाह आप रो पड़े हैं तो एक बात और भी सुन ले। किबला से मैंने कहा कि आपने कितने इमामों को देखा ख्वाब में? आपने कितने इमामों को देखा? किबला कहने लगे मैंने हर इमाम को देखा, हर मासूम को देखा। फरमाने लगे जैसे मैंने हुसैन इब्न अली और अली इब्न हुसैन को देखा वैसे मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे मेरे अम्मा बाबा दोनों चले गए थे दुनिया से, तो मैं मुतवस्सिल हुआ सईदुल शुहदा की खिदमत में। दोनों बड़े अज़ादार थे, मातमी थे। मैंने कहा सरकार मुझे बता दे मेरे अम्मा बाबा कहाँ हैं? तो एक दिन मैं ख्वाब देखता हूँ कि सरकार जन्नत से आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे अम्मा बाबा कहाँ हैं? तो कहा वो मेरे साथ है, पीछे देखो। तो फरमाने लगे हुसैन बख्श जो मेरी मजलिस में आता है ना, मैं उसे बरज़ख की जन्नत में अपने साथ रखता हूं। खुशकिस्मत है आप, ये खुशकिस्मत है आप। जो भी किसी मसलक का भी हो, जो भी अल्लाह अकबर, जो भी मेरी मजलिस में आता है मैं बरज़ख जन्नत में उसे अपने साथ रखता हूं। और फिर मैंने इमाम सज्जाद को देखा। फरमाने लगे मैंने पूछा कि मैंने बड़ा मसाइब पढ़ा है, शहनशाह मसाइब शुमार होता हूँ, आप राजी हैं ना? आपका मैंने हक अदा कर दिया है ना? पता है इमाम सज्जाद ने क्या जवाब दिया? हुसैन बख्श 1990 तक, उस दौर से करबला के दिन से आज तक जितना मसाइब पढ़ा गया, जितने नोहे पढ़े गए, जितनी मजलिसें हुई, जितना मातम हुआ, जितनी शब बेदारियाँ हुई,
मेरी बहन सकीना को लगने वाले एक तमाचे का मुदावा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मजलिस है शाह जी, ये मौजज़ा है आज, ये मजलिस है, आज मौजज़ा है इमाम हुसैन का। अल्लाह अकबर। बस ज्यादा तवील ज़हमत नहीं, मातम भी करना। आशूर के दिन कौन सी मुसीबत थी जो गरीब ज़हरा पे नहीं आई। अपनी आंखों के सामने हबीब जैसा बचपन का साथी देखा, अपनी आंखों के सामने मुस्लिम इब्ने औसेजा की लाश देखी, अपनी आंखों के सामने हुर का लाशा देखा, हुर के बेटे का, हुर के भाई का लाशा देखा, जुहैर की लाश देखी। अपनी आंखों के सामने सरकार ने सारे दोस्तों को देखा, फिर भाइयों को देखा, फिर भांजों को देखा, फिर भतीजों को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर असगर को देखा। मेरा मौला आशूर के दिन अकेला हो गया। बीबी ज़ैनब कहती हैं कि जब मेरे भाई वक्त आखिर लड़ने लगे थे ना, तो इतने कुश्तों के पुश्ते किए कि हमें बाबा की बदर व खैबर याद आ गई, हमें खंदक याद आ गई। यूं लड़ते थे और रजज पढ़ते थे। रजज, ये रजज था, जालिमो तुमने मेरा अकबर भी ना छोड़ा, जालिमो तुमने मेरा गाजी भी मार दिया, जालिमो मेरा कासिम भी तुमने मार दिया, मेरा असगर भी तुमने ना छोड़ा। ये रजज पढ़ते हुए जाते थे। आखिर विदाए आखिर के लिए आए। जब आए हैं तो इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा कैसे पता चलता था जालिमों को कि आपका बाबा कहाँ गया। आपने फरमाया जैसे मेरा बाबा चलता था ना, खून की लकीरें साथ जाती थी। इतना खून बह रहा था कि जमीन करबला पे खत खिंच जाता था। अगर बर्दाश्त कर सके तो मैं सिचुएशन बता दूं। जब आए हैं ना बहन से विदाई आखिर करने, तो हालत ये थी, पांव में तीर थे, पिंडलियों में तीर थे, रानों में तीर थे, सीना फटा हुआ था, गर्दन कटी हुई थी, आधी गर्दन तकरीबन कट गई थी। बर्दाश्त कर सके तो मैं बताऊं, पुश्त में सुराख थे, पुश्त में सुराख हो गए थे। और अगर बर्दाश्त करें, होंठ कट गए थे, पेशानी फट गई थी, आंखें जख्मी थी, हाथों से खून जारी था, बाहों से खून की बारिश हो रही थी। ये हालत थी जब आए हैं, ये हालत थी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ईतीनी बेसौबिन अतीक ला यरगब फीह अहद। बहन एक पुराना लिबास दे। कहा क्यों? कहा जब तुम मेरी लाश पे आओ तो मेरी लाश पे लिबास बाकी हो। अल्लाह अकबर। पुराना लिबास लिया, पिराहन लिया और उसको भी फिर जगह जगह से फाड़ दिया। अब गरीब ज़हरा चले। जब मैं बच्चा था कोटलाजाम में, स्कूल का दौर मेरा, कॉलेज का भी गुजरा, 12वीं जमात तक, हमारे एक किबला थे मौलाना ज़मीर बाकिर और मौलाना मोहम्मद बख्श झमकाना। 2 जगह मजलिस पढ़ते थे और वो बंद पढ़ते सराइकी में। तर्जमा ये होता कि इमाम हुसैन ने अपने घोड़े से कहा कि घुटना तय कर ताकि मैं उतर जाऊं। फिर उतर न सके तो कहा पहलू लगा कि मैं आराम से उतर जाऊं। खुदा की कसम ये रिवायत दुरुस्त नहीं। मुझे इन दोनों किबला साहबान ने बताया था कि बेटा हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई मर न जाए। असल रिवायत तो ये है जो मैंने भी पढ़ी है कि मेरा सलाम हो उस दादा पर जो भागते हुए घोड़े से मुंह के बल जमीन पे आया। 14वें कदम पे जुलजना को पता चला मेरा सवार गिर गया। या ज़हरा, अगर बर्दाश्त करें तो मैं वो रिवायत पढ़ूं जो हुर्मिल मलऊन ने मुख्तार के दरबार में पढ़ी। मुख्तार ने हुर्मिल से पूछा तू ये बता तेरे तरकश में जानवरों को मारने वाले तीर कितने थे? उसे कहा 3। तूने कहां कहां मारे? का पहला तीर मैंने अब्बास के मिशकीजे में मारा, दूसरा तीर मैंने असगर के गले में मारा,
तीसरा तीर बर्दाश्त कर सके मुख्तार तो मैं तुझे बताऊं, जब तेरा मौला वक्त आखिर कभी दाएं गिर जाता, गिरने लगता, कभी बाएं, और मैंने निशाना बांधा, तेरे मौला ने पेशानी पर उल्टी हथेली यूं की ताकि मेरे तीर से बच जाए। मुख्तार मैं तुझे कैसे बताऊं, मेरा निशाना इतना तेज था, तेरे मौला की पेशानी पे हाथ ऐसे ही रह गया और मेरा तीर बेबस हो गया। जब जमीन पे हुसैन गिरे, जमीन को जलजला आया, आसमान से खून की बारिश आई, सुर्ख अंधेरी चली, और एक माँ थी जो कहती फिरती थी, ऐ फौजे अश्किया, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दहरे बेवफा, मातमे हुसैन।